BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران بے گھر ہونے والے اپنے گھر لوٹنے کے لیے بے تاب. حکومت کے انتظامات ناکافی اور عمائدین کے جرگے کا انتباہ. حکومت سره جوړ شي او هغه مشکل حل دا دوام ته. عالمی امدادی ادارے کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شامی عوام کی امیدیں پوری کرنے میں ناکام رہی. اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے طالب علموں نے منیلا میں منعقد ہونے والے کار ڈیزائن مقابلے میں کیا پیش کیا. عمائدین شمالی وزیرستان کے گرینڈ جرگے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی واپسی کا فوری طور پر اعلان کرے ورنہ وہ تمام متاثرین سمیت بذات خود اپنے آبائی علاقوں کی راہ لیں گے. حکومت کی جانب سے متعدد بار بے گھر افراد کو پھر سے بسانے کے اعلانات کے باوجود ان کے لیے اب بھی مناسب اقدامات نظر نہیں آتے. گزشتہ سال جون میں شروع ہونے والے فوجی آپریشن ضرب عضب کے سبب لاکھوں افراد بے گھر ہوئے جو بنو شہر کے ہزاروں خیموں میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں. بنو کی خیمہ بستی سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ. یہ خیمہ متاثرین کے اس گھرانے کے 11 افراد کے سر چھپانے کا واحد آسرا ہے. شدید سردی ہو، بارشیں ہوں، بیماری ہو یا بھوک، یہیں جینا مرنا ہے. ان لوگوں کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں. ہمارا ریشن ہے یہ ہمیں صحیح طور پر نہیں ملتا. صرف 2 توڑے آٹے کا اور چینی بھی نہیں ہے، گھی بھی نہیں ہے. تھوڑا سا گھی کا 5 لیٹر ڈبہ ایک خاندان کے لیے کافی نہیں ہوتا. یہ ہمارے پاس اس کے بہت مشکلات ہے. یہ متاثرین اپنے ماضی سے خوفزدہ اور مستقبل سے لا علم ہیں. کب اپنے وطن واپس جائیں گے کچھ معلوم نہیں. بنو شہر میں لنک روڈ سے داخل ہوں تو آپ کو دائیں بائیں خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے. یہ خیمے شمالی وزیرستان ایجنسی سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے ہیں. کہیں 8 سے 10 خیموں کی بستی ہے تو کہیں 200 سے 300 خیمے قائم ہیں. شمالی وزیرستان کے قبائلی رہنما ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اس گرینڈ جرگے میں عمائدین نے اپنے مسائل بیان کیے اور کہا کہ ان کے خیموں اور گھروں پر اب سیکیورٹی اہلکار چھاپے لگا رہے ہیں. اگر قوم نے ہمیں مجبور کیا تو یہی جرگہ مشران کی عادت کریں گے بذات خود. ہم عوام سے باہر نہیں جا سکتے، ہم اپنے عوام کے ساتھ ہوں گے. وہ ہمیں جدھر بھی لے جانا چاہیں، اگر وزیرستان لے چلنے کے لیے ہمیں کہہ دیں تو ہم ضرور پھر جائیں گے. فوج کے ترجمان کے مطابق آپریشن ضرب عضب میں شمالی وزیرستان کا 80% علاقہ شدت پسندوں سے صاف کیا جا چکا ہے. حکومت کی جانب سے ان متاثرین کی واپسی کے اعلانات تو کیے گئے لیکن اب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. عزیز اللہ خان، BBC نیوز، بنو. اور بے گھر افراد کے مسائل پر بات کرنے کے لیے اس وقت بنو سے براہ راست موجود ہیں ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان. عزیز اللہ خان، بری فوج کے سربراہ نے وسط مارچ سے ان متاثرین کے اپنے گھروں کی واپسی کا اعلان کیا ہے. کیا واپسی کے اعلان کے بعد تیاریاں ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہیں بنو میں؟ شفیع، یہاں پر ایسی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی اور یہی آج جو گرینڈ جرگہ منعقد ہوا ہے اس میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ جو قبائلی عمائدین تھے یا جو جرگے کے لوگ تھے ان میں بھی یہی غصہ تھا کہ حکومت بار بار ان کے ساتھ وعدے کرتی ہے، انہیں تاریخیں دی جاتی ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر انہوں نے جو بھی وعدہ کیا یا جو کچھ بھی انہوں نے حکومت نے کہا اور اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے بعد وہ اپنی قوم کے ساتھ آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے. اگر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہوا تو اس طرف جائیں گے اور اگر ہوا تو وزیرستان کی طرف جانا ہوا تو سارے یہ لاکھوں افراد کا جو متاثرین ہیں یہ پھر وزیرستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے. تو عزیز اللہ خان، جن عمائدین سے آپ کی ملاقات اور بات چیت ہوئی ان کا کیا کہنا تھا؟ اگر یہ واپسی نہیں ہوتی تو وہ کس قسم کے اقدامات کریں گے؟
हाँ, इस हवाले से उनके खदशात बहुत ज़्यादा हैं। इब्तदाई तौर पर तो उनका ये कहना था कि वो अगले हफ्ते से जाएंगे फाटा सेक्रेटेरिएट, उधर धरना देंगे। उसके बाद फिर उनका जो लाहेअमल है उसमें यह है कि वो सियासतदानों से मिलेंगे, सियासतदानों के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि सियासतदानों ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि वो उनके साथ होंगे और पार्लियामेंट में भी अगर हो सके तो वो उसके लिए करारदाद भी लाएंगे और उनकी वापसी के लिए इकदाम करेंगे। बुनियादी तौर पर जो इन अमायदीन को खदशात लाहक हैं वो दीगर कबायली एजेंसियों को देकर उन्हें खदशात लाहक हैं। जैसे उनका ये भी कहना था कि जैसे खैबर एजेंसी में 4 फौजी ऑपरेशन हो गए और कोई 4 सालों से वो लोग बेघर हैं, तो इन्हें भी यही खदशे, हालांकि इनके ऑपरेशन को 9 माह हुए हैं और ये इतना वो कर रहे हैं कि इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको वापस भेजा जाए। अच्छा अजीजुल्ला खान, हुकूमत कई हफ्तों से ये कह रही है कि इनकी वापसी जल्द अज जल्द शुरू होगी। ये जल्द अज जल्द कब आएगी, कुछ अंदाजा है? ऐसी तो कोई अभी तक आसार यहाँ पे नजर नहीं आ रहे कि ये जल्दी कब होगी। जितनी मुंह उतनी बातें। और यहाँ पर ये जब से इन्होंने ये मुतालबा दोहराया है जो कबायली मुतासरीन हैं या उनके अमायदीन हैं कि उनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए, तो उसके बाद से ये बातें मुसलसल पेश आ रही हैं कि इनको वापस भेजने के लिए इकदाम किए जाएं। और हर महीने फरवरी में भी दी गई और फिर उसके बाद मार्च में भी यही तारीख। बन्नू से अजीजुल्ला खान बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आप तक देर से पहुंच रही थी, उसके लिए भी माजरत। आइए देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के सफ़ात पर इस मौजू पर गर्मा गर्म बहस किस किस्म की है। अशफाक तरीन पेशावर से कहते हैं कि कबायली ऐसी सूरत हाल से निमटना जानते हैं, ताहम हुकूमत उन्हें अमन, तालीम और सेहत जैसी सहूलियात फराहम करे। दुआ खान का कहना है कि ये सब पाकिस्तान के लोग हैं, हुकूमत, फ़ौज और अवाम को चाहिए कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मंसूर अख्तर मानसेरा से कहते हैं हुकूमत इन लोगों की है, हर मुमकिन मदद कर सकती है ताकि वहाँ इनकी ज़िंदगी आसान हो सके। आप भी अगर अपनी राय देना चाहें तो हमारे फेसबुक के सफ़े पर अपनी राय दे सकते हैं। और अब कुछ दीगर अहम मौज़ूआत पर नज़र। अमरीकी रियासत मिज़ूरी फर्गूसन नामी इलाके में नस्ली मसावात के हक़ में होने वाले एक मुजाहरे के दौरान 2 पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी गई हैं। ये वारदात फर्गूसन पुलिस के सरबराह के मुस्ताफ़ी होने के चंद ही घंटों बाद पेश आई। कुछ दिन पहले फर्गूसन की पुलिस के रवैये पर सख्त तनकीद की गई थी। तफसील के साथ एमन ख्वाजा। मिसूरी की रियासत फर्गूसन में एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा है। इसकी वजह 7 माह पहले एक स्याह फार्म नौजवान माइकल ब्राउन के एक सफ़ेद फार्म पुलिस ऑफिसर के हाथों हलाकत है। जख्मी पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। एक पुलिस अफसर को बाजू में गोली लगी है और दूसरे को उसके चेहरे पर। दोनों अफसर यहाँ ज़ेरे इलाज हैं। मैं इनकी मौजूदा सूरत हाल पर सरकारी बयान नहीं दे सकता, लेकिन दोनों होश में हैं। ये वाक़या कई माह की बदआमनी के बाद पेश आया जब इलाके के पुलिस सरबराह थॉमस जैक्सन मुस्ताफ़ी होने पर मान गए। उनका इस्तीफ़ा हाल ही में शाया होने वाली एक वफाकी रिपोर्ट के बाद आया, जिसके मुताबिक उनकी डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर नस्ली इम्तियाज़ के वाक़यात हो चुके हैं। चीफ जैक्सन के मुस्ताफ़ी होने के बाद फसादात से निमटने के लिए तैयार पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुईं, जिनमें गोलियां भी चलाई गईं। माइकल ब्राउन की हलाकत के बाद फर्गूसन की पुलिस को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता नवंबर में अमरीकी महकमा इंसाफ ने फैसला सुनाया था कि ऑफिसर डैरन विल्सन ने माइकल ब्राउन को गोली मारकर कोई कानून नहीं तोड़ा। शूटिंग के बाद पुलिस ने कम से कम 100 मुजाहिरीन को इलाके से जाने से रोका। अभी पूरी तरह वाज़ेह नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन इस वाक़ये की तहकीकात जारी है। एमन ख्वाजा, BBC न्यूज़। पाकिस्तान की सियासी जमात MQM के हेडक्वार्टर पर रेंजर्स के छापे के दौरान हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में से 26 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 90 दिन के लिए रेंजर्स की तहवील में दे दिया है। कल बुध को होने वाले ऑपरेशन में रेंजर्स ने बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलाह बरामद करने और सजा याफ्ता मुजरिमों को पकड़ने का दावा किया था।
इराकी हुक्काम के बकौल सरकारी फौज मुल्क के शुमाल मगरबी शहर तिक्रीत में मुख्तलिफ रास्तों से पेश कदमी करते हुए शहर के मरकजी इलाके की तरफ बढ़ रही है, जहां पसपा शुदा दौलत इस्लामिया के जंगजू यकजा हो रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक सरकारी फौज ने तिक्रीत के सनती इलाके और शहर के मरकज के करीब एक अहम चौक से जंगजुओं का सफाया कर दिया है। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, शाम में तबाहकारी को रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल क्यों कर नाकाम रही, और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के तलबा ने बैनुल अक़वामी कार डिज़ाइन मुकाबले में कैसे जौहर दिखाए। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं शफी नकी जामई। इमदादी इदारों के एक आलमी इत्तेहाद की रिपोर्ट कहती है कि शाम में खाना जंगी के खात्मे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही। ये रिपोर्ट शाम में जारी जंग की चौथी बरसी के मौके पर शाया की गई है, और रिपोर्ट ने सलामती काउंसिल को लताड़ते हुए कहा है कि उसने शाम में लोगों की मुनासिब मदद नहीं की और आलमी ताकतों से कहा कि वो मसले के सियासी हल के लिए जुट जाएं। बीबीसी के मशरक़ वस्ता के एडिटर जेरेमी बॉयन की रिपोर्ट, जावेद सोमरो की ज़बानी। ऐसा कम ही होता है कि शाम से कोई अच्छी खबर सामने आए। गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा ने यारमूक के इलाके तक इमदाद पहुँचाई। यहाँ इमदाद मिलना एक गैर मामूली बात है। यारमूक दमिश्क में कायम एक पनाह गुज़ीन कैंप है जो जंग से तबाह और बर्बाद हो चुका है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि दूर दूर तक इस जंग के ख़त्म होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। शाम के बारे में आदाद शुमार इंतहाई सदमे का बाइस हैं, लेकिन ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि आलमी रहनुमाओं ने शाम के बहरान का हल ढूंढना तर्क कर दिया है। ये एक नाकाबिले यकीन बात है कि शाम के लाखों लोगों के लिए इमदाद तक रसाई के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल की 2 करारदादों के बावजूद इस इंसानी इमदाद की तरसील में कोई बेहतरी नहीं आई है, और मुल्क में जारी लड़ाई की वजह से सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। और गुज़िश्ता साल शहरियों के लिए अब तक का सबसे बदतर साल था। दुनिया के ताकतवर ममालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करवा पाए। इसके लिए जिस किस्म के इक़दामात किए जाने चाहिए थे उनको शुरू से ही मुस्तरद कर दिया गया था। जब मैं बहरान के पहले साल फ्री सीरिया आर्मी के इन बागियों से मिला था तो उस वक्त ये चाहते थे कि मगरबी ममालिक सदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ उनकी मदद करें, लेकिन ये मदद उन्हें कभी नहीं मिली। एसाम अल रईस एक शामी अफसर हैं जिनका फ्री सीरिया आर्मी से ताल्लुक़ है। वो अभी भी मजीद मगरबी हिमायत की उम्मीद रखते हैं। हर तरफ शामी अवाम तकलीफ में हैं, चाहे वो हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इलाके हों या दौलत इस्लामिया के। वो हुकूमत की जानिब से बैरल बम का निशाना बन रहे हैं, वो दौलत इस्लामिया के हाथों जिल्लत का सामना कर रहे हैं। इन इलाकों में शामी शहरियों के पास कोई आज़ादी नहीं। वो एक मुतबादिल सूरत हाल के इंतज़ार में हैं। वो किसी के इंतज़ार में हैं जो उन्हें उनकी ज़िंदगी वापस लौटा दे। शाम के इस तनाज़े में सदर बशार अल असद इस वक्त सबसे महफूज पोजीशन में हैं। उनके ख्याल में दौलत इस्लामिया की बढ़ती हुई कुव्वत की वजह से मगरबी ममालिक उन पर इन्हिसार करते रहेंगे। सेटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि गुज़िश्ता 4 बरसों में शाम में रोशनियाँ आहिस्ता आहिस्ता बुझती जा रही हैं और किसी को नहीं मालूम कि वो फिर कब वापस चलेंगी। फैशन डिज़ाइन, दस्तकारी और खेल कूद मुकाबलों में तो पाकिस्तान जाता ही है, लेकिन अब की बार उसके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक ऐसे मुकाबले में गए जो सबसे कम ईंधन लेकिन रफ्तार में सबसे तेज़ कार के डिज़ाइन का था। मुकाबला मनीला में हुआ और 5 में से 1 पाकिस्तानी टीम तीसरी पोजीशन पे भी आई। पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत 17 ममालिक की 100 से ज़्यादा टीमों ने शिरकत की। राह में आई रुकावटों के बारे में अंबर शमसी की रिपोर्ट। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला का मशहूर लुनेटा पार्क, जहां बच्चों के खेल कूद के बजाय गाड़ियों के एक मुकाबले की इफ्तिताही तकरीब हो रही है। लेकिन ये कोई आम गाड़ियां नहीं। पाकिस्तान समेत एशिया के 17 ममालिक से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के तालिबे इल्म अपनी बनाई हुई गाड़ियों के एक मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं।
फ़ायदा है, ये टीम यहाँ पे आती है, एक दूसरे से सीखती है। दिस इज़ अ रियली ग्रेट व्हीकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, एक दूसरे से सीखने का, एप्लीकेशन मोड में सीखना, जो एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। जो चैलेंजेस हैं वो हैं इंडस्ट्रियल बेस के, जो मैं आपको जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो बॉडी मोल्ड्स हैं जिस मटेरियल के बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, और उसका वेट वर्सेस जो आम अवेलेबल है इन अ कंट्री लाइक कोरिया या थाईलैंड में, तो उस तरह इंडस्ट्रियल बेस का थोड़ा सा चैलेंज होता है, जो कि वो टीमें यहाँ से पिछले सालों में सीख के गई हैं और उन्होंने अब अडॉप्ट करना शुरू किया है। मुकाबला सबसे कम ईंधन में सबसे तेज रफ्तार गाड़ियों का है, लेकिन ट्रैक पर जाने से पहले इन गाड़ियों की 200 से ज़्यादा नुकात पर जांच पड़ताल होती है। इस साल एक पाकिस्तानी टीम ने मुनफरिद किस्म के ईंधन का इस्तेमाल किया। तो पाकिस्तान में हमने कोशिश की है शुरू करें इस चीज़ को कि गैसोलीन इंजन को एथेनॉल पे कन्वर्ट करके अब जितने भी इंजन पाकिस्तान में और गाड़ियों में हैं वो एथेनॉल पे लेके आएँ। तो एथेनॉल ये है कि चीप होगी क्योंकि हम अपने मुल्क से बना रहे होंगे, हमें इम्पोर्ट नहीं करना फ्यूल। इस गाड़ी में ईंधन गन्ने से बना हुआ है और उनकी उम्मीद है कि 17 ममालिक हैं, 100 से ज़्यादा टीमें हैं, वो जीत पाएंगे। अगर ना भी जीते, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऑटोमोबाइल की सनत को कायम कर सकें। इसी पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट की एक गाड़ी ने 58 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से गाड़ी चलाकर 42 दीगर टीमों को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। चैलेंजेस के बावजूद अगले साल पाकिस्तानी टीमें शायद पहली पोजीशन हासिल कर सकें। अंबर शम्सी, BBC न्यूज़, मनीला, फिलिपाइन। आखिर में आपको ये याद दिलाते चले कि आज सैरबीन का बड़ा मौजू था शुमाली वज़ीरिस्तान के बेघर अफराद के अपने घरों को वापसी। अमायदीन शुमाली वज़ीरिस्तान के ग्रैंड जरगे ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी वापसी का फौरी तौर पर ऐलान करे, वरना वो तमाम मुतासरीन समेत बज़ाते खुद अपने आबाई इलाकों की राह लेंगे। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार बेघर अफराद को फिर से बसाने के ऐलानात के बावजूद उनके लिए अब भी मुनासिब इक़दामात नज़र नहीं आते। गुज़िश्ता साल जून में शुरू होने वाले फौजी ऑपरेशन ज़रब अब्स के सबब लाखों अफराद बेघर हुए, जो बन्नू शहर के हज़ारों खेमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। हमारे हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शफी नकी जामई को पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।